Very good morning, class 7th. So today, yesterday we started with the chapter Care of Nature, and I explained you up till here. Up till here, I explained you yesterday. On 2nd December, we started this. On 2nd December, we started this, and now I'm going to continue with this lesson. So yesterday we have finished up till here. Now we have to start about the alcohol, a substitute for petrol. Most cars run on petrol, and the widespread use of this fuel causes serious air pollution. So, in many cities, it is poisonous to breathe the air because of the pollution. Fortunately, many alternative fuel cars are being developed. Two of these cleaner ideas are electric powered cars that run on the powerful batteries and hydrogen powered cars that use a special type of hydrogen based petrol. So here we are going to talk about the substitute for the petrol, and here they are telling us about that the alcohol. Alcohol can be used as a substitute for the petrol. So here they are saying that most cars, हमारी जो cars हैं, they mostly run on the petrol, and the widespread use of the petrol, it can cause the serious air pollution also, right? So there are so many cases of air, not cases means lot of air pollution is caused due to all this petrol and all these fuels, diesel, petrol and all that. So it's better if we find out some substitute for this thing. So it is poisonous also to breathe the air because of this air pollution. So fortunately many alternative fuel cars are being developed. तो इस वजह से बच्चे बहुत सारी ऐसी कार्स हमें डेवलप करनी पड़ रही हैं जो दूसरा ऑल्टरनेटिव फ्यूल कार हो, मींस जिसमें पेट्रोल की जगह आपके पास कोई और रिप्लेसमेंट हो. सो टू ऑफ दीज क्लीनर आइडियाज़ आर इलेक्ट्रिक पावर्ड. एक तो इलेक्ट्रिक पावर्ड कार्स हैं हमारी दैट रन ऑन द powerful batteries, and the hydrogen powered cars that use a special type of hydrogen based petrol. So there are two types of so these are hydrogen powered cars and the cars that run on the electric power. So another possible substitute for the petrol is alcohol. Alcohol has been a popular fuel for many years. So they are telling you that alcohol can be used as a substitute for the petrol. So in fact some of the first cars invented ran on the alcohol. तो जो हमारी first cars शुरू में जो invent हुई थी they ran on alcohol only. It might seem strange to combine cars and alcohol. So isn't it feel very strange if we combine cars with alcohol, because we usually say that don't drink while driving, right? And now we are talking about using alcohol as a fuel for the car. So because we often hear that combination of alcohol and driving is a dangerous one. So however this important concern only applies when driver consume the alcohol and not when the cars consume the alcohol. So it's quite funny, but yes, it is true that the combination of alcohol and this cars is dangerous, but it is dangerous when this concern only applies when the drivers consume the alcohol. Means the one who is driving the car should not consume the alcohol, but it is okay if the cars consume the alcohol. Means if the cars are, we are using alcohol as a fuel, as an alternative for the petrol, then it is okay with it. Ethanol, ethanol also called grain alcohol. Ethanol होता है एक, वो grain का alcohol बोलते हैं उसको. It is a common type of alcohol used as the fuel for cars. तो ये भी बहुत common type of alcohol है जो कि हम as a fuel use करते हैं cars में. It can be made from different types of material. तो ये बहुत तरह के material से बन सकता है, including corn, sugarcane and biomass.
तो ये कहाँ कहाँ से बन सकता है? कॉर्न, कॉर्न जो मक्का होती है, शुगर आपको मालूम है, चीनी, शुगर केन मीन्स गन्ना, एंड बायोमास। बायोमास बच्चे फैंसी नेम फॉर ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उन सबको हम बायोमास कह सकते हैं, मीन्स मटेरियल्स दैट कम्स फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो एथेनॉल इज़ अ अल्कोहल फाउंड इन द अल्कोहलिक ड्रिंक्स. तो ये जो है एथेनॉल है ना, ये भी आपको अल्कोहल में मिलता है, या ये भी एक तरह का अल्कोहल है जो अल्कोहलिक ड्रिंक्स में पाया जाता है. सो हाउ एवर द एथेनॉल इज़ यूज फॉर मोटर फ्यूल इज़ डीनेचर्ड. तो इसको क्या करते हैं वो, इसकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं ना उसको चेंज कर देते हैं. मीन्स डीनेचर्ड हियर इट इज़ गिवन द मीनिंग टू चेंज. सो दे डीनेचर इट. इसको थोड़ा सा वो केमिकल चेंज देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उसकी जो नेचुरल क्वालिटीज़ होती हैं वो निकल जाती हैं. विच मीन्स पॉइजन हैज़ बीन एडेड टू डिस्करेज पीपल फ्रॉम ड्रिंकिंग इट. तो क्या समझ में आता है कि इसमें पॉइजन को ऐड किया जाता है. ऐड इसलिए करते हैं ताकि हमें लोगों को डिस्करेज करना है कि वो ड्रिंक ना करें, ठीक है ना. तो जब उसमें पॉइजन होएगी तो ऑब्वियसली पीपल विल नॉट ड्रिंक दैट. सो फॉर डिस्करेजिंग दैम दैट दे शुड नॉट ड्रिंक इट, दे add poison to it. So please be careful, never do swallow any type of motor fuel. So it is very dangerous to swallow any type of motor fuel. We should never do this. Now come to page number 74. So a similar substitute for petrol is methanol. अब एक और सब्सटीट्यूट है, सब्सटीट्यूट होता है मीन्स रिप्लेसमेंट. पेट्रोल का क्या है वो, मेथानॉल, विच इज़ नोन एज द वुड एल्कोहल. इसको हम क्या बोलते हैं, वुड एल्कोहल. क्या बोलते हैं हम इसे, वुड एल्कोहल. इसको वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है. सो इसको वुड एल्कोहल भी बोलते हैं. सिंस द 1960s मैथानॉल हैज़ बीन रिक्वायर्ड फॉर फ्यूल फॉर इंडियानापोलिस. तो इंडियानापोलिस इज़ अ बच्चे, it's a place, name of a place in foreign country. So 1960s से, since 1960 this methanol has been used in Indianapolis. वहाँ पे ये as a fuel यूज़ होता है. 500 एंड अदर मोटर रेसेस. तो वहाँ पे जो मोटर रेसेस वगैरह होती हैं ना, तो वहाँ पे जो मोटर कार्स चलती हैं, सो दे यूज़ दिस मैथानॉल एज अ कार फ्यूल रेसिंग कार्स के लिए. एथेनॉल एंड मैथानॉल सप्लाई लेस पावर देन पेट्रोल. तो ये जो दोनों हैं ये लेस पावर लेती हैं पेट्रोल से. दे सप्लाई लेस पावर, सो अ लार्जर अमाउंट ऑफ फ्यूल इज़ नीडेड. ऑब्वियसली पेट्रोल जो है वो इनसे ज़्यादा पावर देता है, बट ये कम देती हैं पावर, तो इसलिए इनका लार्जर अमाउंट यूज़ होता है टू ट्रैवल द सेम डिस्टेंस. सपोज़ जो पेट्रोल है वो आपका 50 किलोमीटर्स, अगर नहीं, नॉट 50, मीन्स इफ़ इट इज़ कवरिंग 10 किलोमीटर्स, 7 किलोमीटर्स with 1 liter. So the same, if you drive 7 kilometers, so it will take around 2 liters. So it takes larger amount. It is needed in a larger amount क्योंकि ये less power देता है. So however these substitute fuels are cleaner than the petrol. But एक बात है कि ये जो हैं पेट्रोल से ये क्लीनर सब्सटीट्यूट माने जाते हैं. एंड देर इज़ अ लिटिल पॉसिबिलिटी दैट अर्थ विल एवर रन आउट ऑफ देम. और इनके रन आउट होने का मीन्स इनके ख़त्म होने के भी चांसेस बहुत कम हैं. रन आउट मीन्स इनकी कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी कि ये हमारी, जैसे पेट्रोल का बोलते हैं ना कि धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो इट विल नॉट रन आउट. मीन्स ये कभी भी कम नहीं होगा इसका अमाउंट. It's not possible. So thus these fuel represent a valuable alternative to the traditional ones. तो इससे क्या है कि जो हमारे ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव देती हैं हमें ट्रेडिशनल फ्यूल्स को यूज़ करने में. सो वी शुड गो फॉर देम. सो फर्स्ट वॉज द अबाउट द रिहेबिलिटेशन ऑफ द गिबन्स, ठीक है. द सेकेंड पार्ट वॉज द substitute of petrol, and the third one is the sunny side of the electrical power. Now we come to the third part. What is the mightiest force on the earth?
हमारे अर्थ पे सबसे पावरफुल क्या है बच्चे? Mightiest means powerful. So what is the most powerful? It is something millions of kilometers away, the sun. तो सबसे पावरफुल क्या है? हमारी सनलाइट. देखिए जो सन है हमसे कितनी दूर होता है. इट इज़ मिलियन ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस, बट स्टिल it gives heat to each and every part of the earth, every part of the organism. When it falls on the tiniest part of this earth creature, so it gets warmth, isn't it? So that definitely it is the mightiest force on the earth. Sun provides us with the light, warmth and gravity. सन से हमें क्या क्या मिलता है? लाइट मिलती है, वार्मथ मिलता है और ग्रेविटी होती है बच्चे, नेचुरल फोर्स दैट मेक्स द थिंग्स टू फॉल टू ग्राउंड. तो जो नेचुरल चीज़ ग्रेविटी जो है वो भी हमें सन से प्रोवाइड होती है. So however, we are still not using the sun to the greatest extent possible, and still we people are not utilizing it as we should use. क्यों? Because we are not using it to generate the electricity. हमें उसका और भी फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें उससे इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना चाहिए. सोलर एनर्जी बोलते हैं उसको. टुडे द मोस्ट कॉमन सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर आर फॉसिल फ्यूल सच एज द कोल एंड पेट्रोलियम. और हमारे सबसे कॉमन सोर्सेज क्या हैं इलेक्ट्रिकल पावर के? हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं. फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल और हमारा पेट्रोलियम. बर्निंग दिस फ्यूल्स इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉजेज. एंड जब हम इन्हें कोल को और या पेट्रोलियम को जलाते हैं तो ऑब्वियसली उससे जो है हमारी एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है. दीज आर द बिगेस्ट कॉजेज. सो सोलर एनर्जी से क्या होगा? इट इज़ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू दीज पोल्यूटिंग फ्यूल सोर्सेज. तो जो सोलर एनर्जी है वो हमारी इनकी बेस्ट फ्यूल सोर्सेज की बेस्ट सब्सटीट्यूट रहेगी. हम हीट जनरेट करने के लिए जैसे कोल जलाते हैं या पेट्रोलियम जलाते हैं, वहीं पे हम सोलर एनर्जी को यूज़ करेंगे तो ये क्लीनर भी रहेगी, हमारे एनवायरनमेंट को भी साफ रखेगी. सो हाउ डू वी गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सोलर एनर्जी? अब हम कैसे लेते हैं? सोलर इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड यूजिंग सोलर सेल्स. सोलर इलेक्ट्रिसिटी हम कैसे जनरेट करते हैं? सोलर सेल्स आते हैं बच्चे, मेड ऑफ सिलिकॉन. सिलिकॉन के बने होते हैं. अब सिलिकॉन क्या है? ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ल्यूब्रिकेंट्स में यूज़ होता है सिलिकॉन. तो हम लोग ये सोलर सेल्स लेते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि सिलिकॉन की बनी होती हैं. सिलिकॉन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड्स मोस्ट यूज़फुल मटेरियल्स. तो ये हमारा वर्ल्ड का सबसे यूज़फुल मटेरियल होता है मॉडर्न वर्ल्ड का. ये कंप्यूटर्स में यूज़ होता है, रेडियोज़ में, टेलीविजन्स में और बहुत सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो कि हम डेली यूज़ करते हैं. सो सिलिकॉन इज़ यूज्ड इन मोस्ट ऑफ दी टुडेज़ इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. सो व्हेन द सन रेज हिट दिस सेल, सोलर एनर्जी इज़ कैप्चर्ड. और जब इन सेल्स पे जब सोलर एनर्जी गिरती है तो क्या होता है? सोलर एनर्जी कैप्चर होती है. कैप्चर मीन्स उसको वो इकट्ठा कर लेते हैं अपने अंदर, means absorb कर लेते हैं. So if solar energy is so easy to capture, so why it is not put to use more? So now the question is that if it is so easy to capture the solar energy, so why don't we use it more? हम इसको ज़्यादा क्यों नहीं यूज़ कर सकते? One reason is that fossil fuels are affordable. फर्स्ट रीज़न क्या है कि हम इसको ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं वो अफोर्डेबल है. मीन्स वो इस एनर्जी से दे आर चीपर. अफोर्डेबल मीन्स रीजनेबल. So thus the solar power and the other alternatives to fossil fuels have been receiving the lowest priority from the governments and the corporations. इसी वजह से जो हमारे सोलर पावर हैं और जो अदर ऑल्टरनेटिव्स हैं ना हमारे फॉसिल फ्यूल्स के, इसीलिए गवर्नमेंट और जो कॉरपोरेशंस हैं इनको सबसे कम प्रायोरिटी दे रही हैं क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव पड़ते हैं. और जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, पेट्रोलियम और फ्यूल, ये हमारे बहुत उसके सोलर एनर्जी के कंपैरेटिवली बहुत चीप पड़ते हैं. So however, the most important reason for replacing fossil fuel is not their cost, it is the pollution that they cause. So we should replace this. The important reason for replacing the fossil fuel is that it is not their cost, but ये जो है पोल्यूशन इतना कर रहे हैं जो हमारे एनवायरनमेंट, ये है हमारा मेन रीज़न. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर रिप्लेसिंग फॉसिल फ्यूल इज़
is due to their as they are causing the pollution. सम ऑफ द वर्स्ट डिजीज़, और आपको मालूम है कि पोल्यूशन से कितनी डिजीज़ भी हो रही हैं आजकल, लोगों को स्किन प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब हमारी पोल्यूशन की वजह से. Worst diseases that may be caused by the pollutants from burning fossil fuels include the heart disease है, कैंसर है, respiratory disease is related to the breathing. तो ये सब जो डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा फैल गई हैं लोगों में, क्यों हो गई? क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. सो वी नीड टू मेक द प्राइस ऑफ द सोलर इलेक्ट्रिसिटी लोअर. तो हमें इसका एक ही रास्ता नज़र आता है कि हमें जो सोलर एनर्जी है ना, सोलर इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी जो कॉस्ट है ना, हमें इसका जो प्राइस है वो हमें थोड़ा सा लोअर करना पड़ेगा, अफोर्डेबल करना पड़ेगा. सोलर पावर कुड बी वन ऑफ द चीपेस्ट सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज द सन एनर्जी इज़ फ्री. क्यों? और इसको कम करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है क्योंकि जो सोलर पावर है वो हमारी चीपेस्ट सोर्स बन सकती है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. क्यों? क्योंकि जो हमारी एनर्जी है जो हमें सन से मिलती है वो बिल्कुल फ्री मिलती है. उसके लिए हमें कोई पे नहीं करना पड़ता कहीं पे भी, क्योंकि सन जो है हमारा वो हमें फ्री लाइट, वार्मथ और ग्रेविटी देता है. तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड reduce its price, and it could be the one of the cheapest sources of electricity because the sun energy is totally free. So I hope that you understood this lesson. Read out and find out if there is some difficult meaning. So I will share the word meanings as well as the question answers. We will discuss it tomorrow.